गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमारे लिए मिलता है दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वां पद। यहाँ लिखा है, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 2 Peter chapter 2 verse 5. If he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. Amen. हमें आप देखें, पत्र जो बात कह रहा है, इफ मैंने आपसे कहा था वो जो सीरीज है वो है इफ में क्या हुआ, जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को उन्होंने जो घमंड किया, उन्होंने जो बलवाह किया, उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें जो है दंड के अधीन किया है, उन्हें अधीन किया है कि वो जो है एटर्नल जो कंडेमनेशन है उसमें जाएं, उन्हें गिरा दिया गया। साथ ही साथ जो है आप देखिए जो झूठे जो शिक्षक हैं उन्हें भी परमेश्वर नाश करेगा। वो लोग जो हैं जो लोगों को जो है झूठ में फंसाते हैं, झूठ में परमेश्वर के विरोध में जाने की बात करते हैं। आप देखें परमेश्वर जो वचनों से बात कर रहा है आज आप देखें, अब जो बात हो रही है वो स्वयं में बात हो रही है उन लोगों की जो है नोहा उसके साथ जो है, ना केवल नोहा उसके साथ उसके हैं परिवार के 7 लोग। आप देखें परमेश्वर ने नाश किया जगत का, परमेश्वर ने नाश किया बाकी लोगों का। क्यों नाश किया? क्योंकि जो उस समय जो था लोग की जो बुद्धि थी वो खराब हो गई थी, जो गुनाह है बढ़ गया था। आप देखें परमेश्वर ने इन 8 लोगों के बजाय जो है सबका नाश किया। आप देखें जो फ्लड है उसका वर्णन हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक। Genesis chapter 6 verses 1 to 8. Wickedness in the world. When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of humans were beautiful, and they married any of them they chose. Then the Lord said, My spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Their days will be numbered and will be 120 years. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God went to the daughters of humans and had children by them. They were the heroes of old, men of renown. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Amen. आप देखें यहाँ एक रेफरेंस हम देख सकते हैं कैसे जो विश्वासी हैं उन्हें जो है अन्य जातियों से अविश्वासियों से कोई मेल जोल नहीं रखना है, कोई शादी ब्याह नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर ने नाश किया उन लोगों का जिन्होंने बलवा किया, those who rebelled against God। यहाँ बात हो रही है नोआ के विषय में, यहाँ बात हो रही है पत्र बात करता है, पहला पत्र उसके 3 अध्याय के 20 पद में पत्र बात करता है। 1 Peter chapter 3 verse 20. To those who were disobedient long ago, when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it, only a few people, 8 in all, were saved through water. Mind you friends, it's an historical event। आप देखें जो पत्रस है
उसे एक्नॉलेज करता है। आप देखें इसी बात को जो है प्रभु यीशु मसीह भी एक्नॉलेज करता है। नंबर 1 पीटर, नंबर 2 यीशु मसीह। Amen. आप पढ़ लीजिए मेरे साथ मैथ्यू का 24वां अध्याय 36 से लेकर 44 पद तक। Matthew chapter 24 verses 36 to 44. The day and hour unknown. But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a hand mill, one will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on that day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So also you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. आप देखें यहाँ जो बात हो रही है, परमेश्वर जिसे भला लगा उसने मनुष्य को बनाया, उसे अच्छा लगा, he was happy। लेकिन अब जो है वो परमेश्वर जो है पछताता है। बाइबल में जो है 2 बार आया है परमेश्वर के पछताने का वर्णन। नंबर 1 वो जो उसने आदम को बना के पछताया, उन्होंने उसकी दृष्टि में गुनाह किया। और दूसरी बार है जब वो उसने बनाया शाऊल को राजा बनाया तो परमेश्वर पछताया। आप देखें यहाँ जो बात हो रही है, कैसे जो परमेश्वर ने जब उन्होंने बलवा किया, स्वर्गदूत ने बलवा किया, परमेश्वर ने उनका नाश किया। जो मनुष्य हैं उन्होंने बलवा किया, उनका नाश किया। अब आप कहेंगे कि कैसे जो परमेश्वर है, एक और आप कहते हैं कि जो प्रेम करने वाला है, एक और जो है वो नाश करने वाला है। मैं कहूँगा कि परमेश्वर ने प्रेम किया, सही बात है, वो प्रेम का परमेश्वर है। दूसरी बात जो है परमेश्वर जो है न्याय भी है, वो न्याय करने वाला है। प्रभु का एक सेवक कहता है, God can do everything, there is nothing too hard for him, but he cannot do sin। परमेश्वर जो है पाप नहीं करेगा। इसलिए मेरे मित्र, आप जो भी हैं, चाहे आप जो हैं सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करते हैं या झूठे मन से, अगर आप झूठे हैं तो चेत जाइए, पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के चरणों में आइए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आप देखें इस पत्री के अंत में पत्र जो है बताता है कैसे जो ये घटना है, न्याय की जो घटना है, ये सच है, इट्स एन हिस्टोरिकल इवेंट। आप देखें बार बार जो है परमेश्वर जो है मनुष्य को चिताता है, मुझे और आपको भी चिताता है। परमेश्वर मुझे कहता है लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है, आइए परमेश्वर के चरणों में लौट आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए जो आपकी सेवा में हैं, प्रभु आप उनके साथ होने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, और जो आपके मार्गों से भटक गए हैं उन्हें वापस फिर लाइएगा। तो मेरी प्रार्थना है आप उन बेटे बेटियों के लिए जो आप बीमार हैं उन्हें छुएगा, चंगाई दीजिएगा, उनके साथ उन पर दया करें। प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की
सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आप सबके साथ अब से लेकर सदा सर्व तक होती रहे। आमीन आमीन। आमीन।